Hello students, today I am going to explain the remaining part of the story Pip meets a convict. That is chapter 2 in your English literature textbook. So dear students, today I am going to explain page number 24 in your book. You can open your book to understand better. So we were in the point when the convict was trying to threaten the small boy. जब वो उसको डराने की कोशिश कर रहा था वहाँ पर हमने स्टोरी को छोड़ा था. Oh, don't cut my throat, sir. I pleaded in terror. I was requesting the convict. वो बोल रहा है कि वो convict को बहुत जोर से रिक्वेस्ट करा था. नहीं नहीं मेरा थ्रोट मत काटिए. Don't cut my throat. Tell me your name, said the man. Quick. मैन ने कहा फिर ठीक है अपना जल्दी से नाम बताओ. Tell me your name. Pip, sir. Once more, said the man, staring at me louder. उसने फिर से पूछा. Tell me your name once more. एक बार और बताओ. और मेरी तरफ और बुरी तरह से वो घूर रहा था. Staring means to look with bad emotions. और जोर से बोला लाउडर जोर से नाम बताओ. पिप पिप सर. and you can see the small boy was very much afraid. वो बहुत डर गया और अपना नाम बता रहा है. पिप पिप. show me where you live, said the man. point out at the place. उसने बताया तुम कहाँ रहती हो मुझे दिखाओ. उस जगह की तरफ पॉइंट आउट करो. उस जगह को पॉइंट आउट करो मतलब इशारा करके बताओ कि किधर रहती हो. I pointed to where our village lay a mile from the church. और बेचारे पिप ने जहाँ उसका गांव था उधर इशारा करके बताया और ये भी बताया कि इस चर्च से 1 मील दूर पर है. 1 mile away from this church. The man looked at me closely. Then he turned me upside down and emptied my pockets. और तब तक उस मैन ने क्या किया उसको बहुत पास जाकर के देखने की कोशिश की just to make him more afraid. Then he turned me upside down. और फिर उसने मुझे बिल्कुल उल्टा कर दिया. Upside down means the feet at the top and the head at the bottom and emptied my pockets. और उसके पॉकेट में जो कुछ भी था वो उसने खाली कर दिया. There was nothing in them but a piece of bread. उन पॉकेट्स में क्या था कुछ ज़्यादा नहीं था बस एक ब्रेड का पीस था. The upside down view of the church righted itself when he placed me on the high tombstone. जब उसने उस ऊंचे हाई tombstone के पास उसको उल्टा करके लटकाया तो उसने क्या देखा. The church was just looking upside down. I sat trembling while he ate the bread ravenously. और इतनी देर में वो जो बेचारा छोटा बॉय है वो ट्रेम्बलिंग कर रहा है. He's trembling out of fear. डर के मारे वो कांप रहा है. And till then the convict was eating his bread ravenously. Dear students, ravenously means when we are very much hungry, then we eat a thing in that manner. Now look here, said the man. Where are your parents? There, sir, said I. उसने कहा अच्छा इधर देखो फिर बताओ तुम्हारे पेरेंट्स किधर हैं. He pointed out there, sir. उसने कहा इशारा करते हुए कि वो वहाँ हैं. The man jumped and made a short run, but then he stopped and looked over his shoulder. जो मैन है उसने तुरंत जंप किया और छोटा सा थोड़ी दूर की रनिंग की. बट देन ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड ओवर हिज शोल्डर. फिर उसने अपने शोल्डर के ऊपर से देखा. देयर सर आई टिमिडली सेड पॉइंटिंग टू द टोम्बस्टोन. उसने टोम्बस्टोन की तरफ इशारा करके बताया मेरे फादर और मदर यहाँ हैं. माई पेरेंट्स आर हेयर. देयर सर आई टिमिडली सेड पॉइंटिंग टू द टोम्बस्टोन. उसने कहा इस टोम्बस्टोन की तरफ इशारा करके बताया कि वहाँ हैं. ओह सेड द मैन. सो हु डू यू लिव विद. अच्छा तो फिर तुम किसके साथ रहते हो. If I let you live, which I haven't made up my mind about. उसने कहा अगर मैं तुमको जिंदा छोड़ देता हूँ जिसके बारे में मैंने अभी कोई प्लान नहीं किया कि मैं तुमको जिंदा छोड़ूंगा तो किसके साथ रहते हो किसके साथ रहोगे. My sister, sir, Mrs. Joe. उसने कहा सर मैं अपनी सिस्टर के साथ रहता हूँ Mrs. Joe Gargery. Mrs. Joe Gargery, a wife of Joe Gargery the blacksmith, sir. उसने कहा मिसेस जो गार्गरी के साथ रहता हूँ जो कि मेरी सिस्टर है और वो जो गार्गरी की वाइफ है. और जो गार्गरी क्या है ही इज अ ब्लैकस्मिथ सर. डू यू नो हु इज अ ब्लैकस्मिथ. अ पर्सन हु मेक्स मटेरियल और आर्टिकल्स आउट ऑफ आयरन. Blacksmith, said he and looked down at his leg. After looking at his leg and me several times, he took me by both arms and tilted me back as far as he could hold me. Then he stared into my eyes. Then what did the convict said? Convict ने बोला अच्छा वो blacksmith है. A means not very important and looked down at his leg और अपनी leg की तरफ देखकर उसको सोचने लगता है. Dear students, आपको तो पता ही है ना उसके leg में क्या है. It is a long iron chain.
So he is just imagining blacksmith and he is connecting his thought to the iron chain in his leg. उसको याद आया कि मेरे पैर में जो आयरन की चेन है उसको काटने के लिए blacksmith may be helpful. After looking at his leg, me several times, कई बार उसने अपनी लेग को देखा और मुझे देखा. He took me by both arms, उसने मुझे दोनों बाहों से पकड़ लिया and tilted me back as far as he could hold me. Then he stared into my eyes. Now look here, he said. I need to decide if I will let you live. Do you know what a file is? उसने बहुत बार देखा और उसने उसको दोनों आर्म से पकड़ के उसको कहाँ बिठा दिया? टॉमस्टोन के ऊपर बिठा दिया. एंड as far as he could hold me, then he stared into my eyes. उसकी आंखों में घूर कर देख रहा है. Now look here, उसने कहा देखो, I need to decide if I will let you live. मैं अगर डिसाइड करता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदा रहने दूँ. Do you know what file is? क्या तुमको पता है फाइल क्या होता है? Yes sir. And you know what grub is? क्या तुमको पता है ग्रब क्या होता है? Yes sir. पुअर बॉय बेचारा डर के मारे पिप क्या कह रहा है? सारी चीज़ों का आंसर यस बोल रहा है. ही इज़ वेरी मच अफ्रेड, बहुत डर गया है क्योंकि वो उसको पीछे की तरफ टिल्ट कर रहा है जैसे कि वो उसको अभी गिरा देगा. आफ्टर ईच क्वेश्चन ही टिल्टेड मी ओवर अ लिटिल मोर. और हर क्वेश्चन के बाद वो उसको और नीचे झुका रहा है. दिस मेड मी फील हेल्पलेस. इससे वो बेचारा पिप है वो बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहा है. वो सोच रहा है तो मुझे गिरा देगा और मैं अपने आप को बचा भी नहीं पाऊंगा. आई वॉज इन डेंजर. नाउ ही हैज़ कम टू नो कि मैं बहुत डेंजर में पड़ गया हूँ, मैं बहुत खतरे में हूँ. You get me a file. He tilted me again. And you get me the grub. He tilted me again. You bring them both to me. He tilted me again. Or I'll have your heart and liver out. He tilted me again. Dear students, यहाँ पर आप देख पा रहे हो Pip is very much afraid और वो जो convict है he is tilted. Tilted means उसको बार बार नीचे की तरफ झुका रहा है as you can see in the picture also. And he is asking, you get me a file. तुम मेरे लिए एक फाइल लेकर आओगे. Dear students, file is a instrument that is used to cut iron. जिसको कि आयरन की चीज़ों को कट करने, जैसे हम वुडन सॉ होता है लकड़ी को काटने के लिए आरी, इन द सेम वे देयर इज़ अ फाइल टू कट द आयरन चेन और सम आयरन मटेरियल. तो वो मांग उससे बोल रहा है कि अगर मेरे लिए फाइल लेकर आओगे और उसको बोलते हुए उसको फिर टिल्ट कर रहा है. एंड यू गेट मी द ग्रब. ग्रब मीन्स समथिंग टू ईट, कुछ खाने के लिए. ही टिल्टेड मी अगेन. एंड फिर बोलता है कि दोनों चीज़ें मेरे लिए लेकर आओगे. एंड देन सेइंग दिस ही टिल्टेड हिम अगेन. और फिर उसको डराते जा रहा है, नीचे झुकाते जा रहा है. और आई विल हैव योर हार्ट एंड लिवर आउट. अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा हार्ट और लिवर दोनों बाहर निकाल लूँगा. ही टिल्टेड मी अगेन सेइंग दिस. और इतना कहते कहते उसको इतना डरा दिया दैट द बॉय वॉज रियली टेरिफाइड. वो बहुत डर गया है. I was dreadfully frightened and hoped that he would not drop me. और मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मुझे लग रहा था कि वो मुझे नीचे ना गिरा दे. I clung to him with both hands. मैंने दोनों हाथों से उसको पकड़ लिया. Clung means to hold tightly. And he gave me a most tremendous drip and roll. और उसने मुझे पूरी तरह से नीचे गिराने की कोशिश की और फिर से उठा लिया. So that the church jumped. और church jumped over its own weathercock. जो चर्च, जैसे कि चर्च जो उसको उल्टा दिख रहा था फिर से दिखने लगा और उसका वेदरकॉक उसको नीचे दिख रहा है और चर्च ऊपर की तरफ. दैट मीन्स एवरीथिंग इज लुकिंग अपसाइड डाउन. पूरा उल्टा लटका दिया. देन स्टिल होल्डिंग मी अप ऑन द टॉमस्टोन ही वेंट ऑन. और फिर उसने टॉमस्टोन के ऊपर उसको पकड़ के रखा और ऐसे करता गया. बार बार नीचे झुका रहा है और बार बार उसको ऊपर उठा रहा है. अर्ली टुमारो मॉर्निंग ब्रिंग दैट फाइल एंड ग्रब. कल अर्ली मॉर्निंग में लेकर आना है मेरे लिए फाइल और ग्रब. यू ब्रिंग मी द लॉट टू मी एट दैट ओल्ड बैटरी ओवर देयर. और ये चीज़ें तुम मेरे पास लेकर आओगे. कहाँ लाओगे? ही इज़ टेलिंग द लोकेशन ऑल्सो. कहाँ मंगा रहा है स्टूडेंट्स? बैटरी ओवर देयर. बैटरी इज़ अ ओल्ड फोर्ट, एक पुराना किला है, वहाँ पर मंगा रहा है. इफ़ यू डू इट एंड इफ़ यू डोंट से अ वर्ड अबाउट मी आई विल लेट यू लिव. अगर तुमने ये दोनों काम मेरे कर दिए और इसके बारे में किसी को एक वर्ड भी नहीं बताया तब तो मैं तुमको जिंदा रहने दूंगा. अदरवाइज आई विल kill you. If you fail or say anything to at all about me, अगर तुमने ऐसा नहीं किया और अगर किसी के बारे में थोड़ा सा भी मेरे बारे में किसी को बताया, then your heart and your liver shall be torn out. तो तुम्हारा हार्ट और लिवर दोनों के दोनों मैं निकाल लूँगा. roasted and eaten, और उसको भून कर खा लूँगा. Now I am not alone. मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पर. There is a young man hiding with me.
और एक यंग मैन है जो मेरे पीछे छुपा हुआ है। इन कंपैरिजन विद हिम आई एम एन एंजल। और वो बता रहा है पिप को कि अगर मैं अपने आप को उस वाले जो मैन छुपा हुआ उससे अगर कंपेयर करूं तो मैं एक एंजल हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, वो मुझसे लाख गुना ख़राब है। ही इज़ वेरी मच डेंजरस इन कंपैरिजन टू मी। इसका मतलब ये हुआ